کہتے ہیں بعض اوقات انسان اپنی قسمت خود بدل دیتا ہے اور بعض اوقات صرف ایک غلط فیصلہ تباہی کو دعوت دے دیتا ہے۔ اس وقت جب پوری سلطنت ایک خوفناک آفت سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، اسی پل قسمت خاموشی سے ایک اور کہانی لکھ رہی تھی، ایک ایسی کہانی جس میں ایک شہزادی کو اس غلطی کی سزا ملنے والی تھی جو اس نے کبھی کی ہی نہیں تھی۔ سلطنت ولمورا کا محل روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ روشنیاں اور آتش بازی جنت کا سما پیش کر رہی تھیں۔ محل مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف خوشی اور جشن کا ماحول تھا، کیونکہ آج بادشاہ نے اپنی اکلوتی بیٹی کی منگنی کر دی تھی اور اس کی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی تھی۔ مگر اس خوشی کے باوجود بادشاہ کے دل میں ایک گہری بے چینی چھپی ہوئی تھی، کیونکہ ایک خوفناک آفت آہستہ آہستہ اس کی پوری سلطنت کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ میرال، بہت جلد ہماری شادی ہو جائے گی، پھر ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے۔ ہمدان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر کچھ برا ہو گیا تو۔ میرال، خوشی کے موقع پر ایسی بات نہ کرو۔ ہمدان، تم جانتے تو ہو ہماری سلطنت میں کیا ہو رہا ہے۔ سانپ محل میں آ گئے۔ ایک وقت تھا جب بادشاہ سلیمان کی حکومت میں سب خوشحال تھا۔ وہ ایک عادل حکمران تھا، اس کی رعایا خوشحال بھی تھیں اور اس سے بے حد محبت بھی کرتی تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی، شہزادی میرال، جو نہ صرف حسن کا شاہکار تھی بلکہ اتنی ہی نرم دل اور نیک سیرت بھی تھی۔ اس کی بات بچپن ہی میں ایک ہمسایہ سلطنت کے شہزادے سے طے ہو گئی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرنے لگے تھے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر ایک دن اچانک یہ کیا ہو رہا ہے؟ زلزلہ آ رہا ہے! بھاگو، اپنی جان بچاؤ۔ زلزلہ آ رہا ہے! بھاگو! اپنی جان بچاؤ! زلزلہ آ رہا ہے! بھاگو! اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارا ملک ایک ہولناک زلزلے کی زد میں آ کر تباہ ہونا شروع ہو گیا۔ گھر، بازار اور محل سب بربادی کا منظر پیش کرنے لگے۔ لوگ بے گھر ہو گئے اور کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ بادشاہ سلیمان ایک رحم دل بادشاہ تھا جو اپنی رعایا کی تکلیف کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ وہ خود ان لوگوں کے درمیان کھڑا انہیں حوصلہ اور یقین دلا رہا تھا کہ بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جتنے بھی گھر تباہ ہوئے ہیں انہیں فوری طور پر ٹھیک کیا جائے اور جس کا بھی نقصان ہوا ہے وہ شاہی خزانے سے پورا کیا جائے۔ بادشاہ کے حکم سے ملک بھر میں مرمت کا کام شروع ہو گیا، مگر کام کرتے ہوئے مزدوروں نے دیکھا کہ ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے اندر سے سانپ نکل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب خوفزدہ ہو گئے، مگر سوال یہ تھا کہ آخر یہ سانپ آ کہاں سے رہے تھے؟ بہت زمانہ پہلے سلطنت ولمورا کے نیچے یہ سرنگیں بنائی گئی تھیں۔ یہ خفیہ راستے دور دراز صحراؤں تک جاتے تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ صدیوں تک یہ تاریک سرنگیں زمین کے نیچے دفن رہیں، مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان اندھیروں میں ہزاروں سانپ پل رہے ہیں۔ مگر جب زلزلہ آیا تو اس کی شدت بہت زیادہ تھی۔ زمین گہرائی تک پھٹ گئی، سڑکیں ٹوٹ گئیں اور صدیوں سے بند وہ سرنگیں بھی دراڑوں کا شکار ہو گئیں۔ بس پھر کیا تھا، سانپوں کے باہر آنے کا راستہ بن چکا تھا۔ میرے آقا، سڑکوں اور گھروں کی تعمیر تو کافی حد تک ہو گئی ہے، مگر سانپوں پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہے اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ جو بھی ممکن ہے کرو، اگر انہیں ابھی قابو نہ کیا گیا تو یہ آنے والے وقت میں بہت بڑی مصیبت بن جائیں گے۔ سانپوں کو روکنے کے لیے ہر ممکن تدبیر اختیار کی گئی۔ شکاریوں کو بلایا گیا، محل کے گرد آگ کی دیواریں بھی قائم کر دی گئیں، مگر اس سب کے باوجود سانپوں پر قابو پانا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا اور کاروبار تباہ ہو گئے۔ لوگ اپنے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے۔ سانپوں کی وجہ سے گھروں تک کھانے پینے کی رسائی بھی مشکل ہوتی جا رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی لوگ سانپوں کے ڈسنے سے مرنے لگے۔ میرے آقا، حالات اور خراب ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کی جان اب خطرے میں ہے۔
इस मसले का कोई हल निकालना होगा। बादशाह के हुक्म पर दुनिया भर में शाही मुहाफिज भेज दिए गए और हर जगह ये ऐलान कर दिया गया कि जो कोई भी इस मसले का हल निकालेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। और फिर ये खबर सुनकर एक अजीबो गरीब आदमी हाथों में बीन लिए सल्तनते विल्मोरा की तरफ चल पड़ा। मेरे आका, मैं इस मसले का हल कर सकता हूं, मगर मेरी एक शर्त है। बताओ, तुम क्या चाहते हो? मेरे आका, मुझे 40 ऊंट चाहिए जो सोने के संदूकों से भरे हों। 40 ऊंट सोने से भरे हुए? हाँ, 40 ऊंट। और जब मैं सांपों को लेकर जाऊं तो ना मुझे कोई देखेगा और ना ही मेरा पीछा करेगा। ठीक है, अगर तुम वाकई ये कर सकते हो तो तुम्हारी शर्त मंजूर है। उस सपीरे ने बीन बजाना शुरू की और उसकी बीन की धुन सुनते ही सारे सांप हर कोने से बाहर निकलकर उसके पीछे चलने लगे। वो बीन बजाता गया और सांप उस धुन में मदहोश उसके पीछे बढ़ते रहे। सपीरा उन्हें सल्तनत से निकालकर दूर खतरनाक जंगलात की तरफ ले जाने लगा। वो ऐसे जहरीले जंगलात थे जहां बरसों से कोई इंसान नहीं गया था, क्योंकि वहां के पौधे और फजा दोनों जहरीले थे। और फिर आखिरकार उस सपीरे ने उन तमाम सांपों को उसी जहरीले जंगल में छोड़ दिया। सांपों को उस जहरीले जंगल में छोड़ने के बाद वो सपीरा दोबारा सल्तनते विल्मोरा की तरफ रवाना हो गया ताकि अपना इनाम वसूल कर सके। बहुत खूब, तुमने वो कर दिखाया जो कोई और ना कर सका, मगर इस काम के लिए 40 ऊंट बहुत ज्यादा हैं। मेरे आका, वादा 40 ऊंटों का था। बाबा, मैंने सुना है कि सब सांप चले गए हैं। 40 ऊंट बहुत ज्यादा हैं। 10 ऊंट बाहर खड़े हैं सोने से भरे हुए, तुम वो ले जा सकते हो। बाबा, आपको वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए थी। बेटी, तुम जानती तो हो, लोग भूख से मर रहे हैं, उनके लिए अब कुछ करना है। सारा सोना एक इंसान को नहीं दिया जा सकता था। सपीरा महल से चला तो गया, मगर वादा पूरा ना होने पर उसके अंदर गुस्सा और इंतकाम भर चुका था। और अब वो बादशाह से वादा खिलाफी का बदला शहजादी मिराल की सूरत में लेना चाहता था, क्योंकि अब वो शहजादी को देख चुका था। वो महल के करीब ही छुपकर इंतजार करने लगा कि शहजादी मिराल कब महल से बाहर निकले ताकि वो अपना वार कर सके। अगले दिन शहजादी मिराल खुशी खुशी महल से चंबीली के बाग जाने के लिए निकली। वो हर हफ्ते वहां जाया करती थी, मगर सांपों की वजह से उसका जाना बंद हो गया था। और जैसे ही शाही बघी महल से निकली, सपीरे ने खामोशी से उसका पीछा करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो किसी भी कीमत पर शहजादी तक पहुंचना चाहता था। शहजादी मिराल चंबेली के बाग में खिले खूबसूरत फूलों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। फिर उसने अपनी खादमा से कहा, नूरी, जाओ बगी से टोकरी लेकर आओ। मैं चाहती हूँ इन फूलों के गजरे बनाए जाएं। खादिमा चली गई और शहजादी फूलों को देखकर खुश हो रही थी। खादिमा के जाते ही सुपीरे को मौका मिल गया और वो शहजादी की तरफ आने लगा। जैसे ही खादमा बगी की तरफ गई, सपेरे ने मौका देखकर अपनी बेन बजाना शुरू कर दी। उसकी धुन जैसे ही शहजादी के कानों तक पहुंची, वो जैसे सहरज़दा सी हो गई। ये बात तो तय थी कि सपेरे की बेन सिर्फ सांपों को ही नहीं, इंसानों को भी काबू कर सकती थी। और फिर शहजादी मिराल ने खामोशी से सपेरे के पीछे चलना शुरू कर दिया, जबकि सपेरा उसे बाग से निकालकर आहिस्ता आहिस्ता वीराने की तरफ ले जाने लगा। सपीरा शहजादी मिराल को समंदर की तरफ ले जाने लगा, जहां दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद नहीं था। फिर वो उसे समंदर किनारे पड़े एक लकड़ी के संदूक के पास ले आया। ये वही संदूक था जो बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर दिया था। सपीरा मुसलसल अपनी बेन बजाता रहा और शहजादी जैसे सहज़दा होकर खुद उस संदूक के अंदर जा बैठी और फिर उसने संदूक को बंद कर दिया। सपीरे ने बिनीन बजाना बंद कर दी और फिर पानी की लहरों ने उस संदूक को बहाकर
समुंदर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। ये सब देखकर सपीरा मुतमईन दिखाई दे रहा था, जैसे उसने अपना बदला ले लिया हो। संदूक समंदर में बहता रहा और कुछ फासले तय करने के बाद समंदर के बीच जा पहुंचा। फिर अचानक तेज लहरों के टकराने से संदूक खुल गया और शहजादी मिराल उसमें से बाहर निकल आई। उसने मुश्किल से एक गहरा सांस लिया, जैसे उसका दम घुट रहा हो। मैं यहाँ कैसे आ गई? उस धुन की आवाज के बाद से मुझे कुछ याद क्यों नहीं? रात होते ही समंदर में एक खौफनाक तूफान आ गया। ऊंची ऊंची लहरों ने शहजादी के संदूक को तोड़ डाला और शहजादी मिराल अपनी जान बचाने के लिए एक लकड़ी के तख्ते पर आ गई, मगर सर्दी की शिद्दत और खौफ की वजह से वो बेहोश हो गई और फिर वो बीच समंदर बहती रही। अचानक पानी के दरमियान एक पुरस्रार रोशनी उभरने लगी और जैसे ही शहजादी का तख्ता उस रोशनी में पहुंचा, आसमान से एक तेज बिजली सीधी शहजादी पर आ गिरी और अगले ही लम्हे वो उस पुरस्रार रोशनी में कहीं गायब हो गई। उधर जब खादमा ने आकर बादशाह को बताया कि शहजादी बाग में मौजूद नहीं थी, तो वो शदीद परेशान हो गया। बादशाह ने फौरन शाही मुहाफिजों को हुक्म दिया कि शहजादी मिराल को हर हाल में तलाश किया जाए और साथ ही उस सपीरे को भी ढूंढा जाए, क्योंकि कहीं न कहीं बादशाह समझ चुका था कि सपीरे ने वादा खिलाफी का बदला ले लिया है। शाही मुहाफिजों ने पूरी सल्तनत छान मारी, मगर ना शहजादी का कोई पता लगा और ना ही उस सपीरे का। बादशाह ने फौरन शहजादा हमदान को खत लिख भेजा कि शहजादी मिराल गुम हो चुकी है और अब शहजादा हमदान ही उसकी आखिरी उम्मीद है। शहजादा हमदान मंगनी के बाद शादी की तैयारियों के लिए अपनी सल्तनत वापस चला गया था, मगर जैसे ही उसे ये खबर मिली, उसके पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी बेटी को ढूंढ लाओ, उसे दोबारा देखना मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है। खत पढ़ते ही शहजादा हमदान फौरन शहजादी मिराल की तलाश में निकल पड़ा। सफ़र अनजाना था और मंजिल गुमनाम, मगर वो अपनी तलाश जारी रखते हुए पहाड़ों से गुजरता गया। कभी सहराओं की खाक छानी, मगर उसे कोई सुराग न मिल सका। यूं ही सफ़र करते करते वो एक पुरस्रार जंगल में आ पहुंचा। उस जंगल के फूल, पौधे और परिंदे सब किसी जादुई दुनिया का हिस्सा मालूम हो रहे थे। क्या अजीब सी जगह है, शायद यहाँ कोई सुराग मिल जाए। मिराल, तुम कहाँ हो? दूसरी तरफ शहजादी मिराल एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुकी थी जो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं लगती थी। वो बेहोश पड़ी थी और उसे वहां देखकर उस दुनिया की मखलूक आहिस्ता आहिस्ता उसके पास जमा होने लगी। वो सब हैरान थे, आखिर ये कौन है और यहाँ कैसे आ गई? मुझे माफ कर दो, मेरा कोई कसूर नहीं है। शहजादी की बात सुनकर वहां मौजूद तमाम मखलूक एक दूसरे को देखने लगी। वो सब हैरान थे कि आखिर ये क्या कह रही थी। फिर उनमें से एक मखलूक आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, गोया वो शहजादी के करीब जाकर उसके बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि उस मखलूक के पास सिर्फ छूकर हकीकत जान लेने की ताकत मौजूद थी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। मुझे वापसी का रास्ता बता दे, मैं अपने घर चली जाऊं। मुमकिन नहीं है, तुम्हारी दुनिया का रास्ता कोई नहीं जानता। हमें टारून कहते हैं और तुम जहां हो यहाँ वक्त रुका हुआ है। अब तुम यहाँ हमेशा के लिए कैद हो चुकी हो। कितना अजीब जंगल है। शाम होते ही सब कुछ सुनहरी हो गया है।
सुनो सुनो एक कहानी शीशे की दुनिया में पारियों जैसी रानियां ने। शहजादा हमदान ने उस सुनहरी चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। वो चिड़िया अचानक उसकी नज़रों से ओझल होकर गायब हो गई। शहजादा थक हार कर एक दरख्त के नीचे बैठ गया और न जाने कब उसकी आंख लग गई। मगर जैसे ही उसकी आंख लगी, वो पुरस्रार दरख्त जाग उठा। दरख्त के तने में से एक अजीब सा चेहरा नमूदार हुआ और अगले ही लम्हे शहजादा उस दरख्त के अंदर गायब हो गया। जब शहजादा हमदान ने दोबारा आंख खोली तो उसने खुद को बादलों के ऊपर मौजूद एक पुरस्रार घर के सामने पाया। उस घर पर एक बहुत बड़ा घड़ियाल बना हुआ था। शहजादा हैरत से उस घर के अंदर दाखिल हुआ, मगर अंदर का मंजर देखकर उसकी परेशानी बढ़ गई। पूरा घर सिर्फ घड़ियों से भरा हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी पुरस्रार तिलिस्म का हिस्सा बन चुका हो। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और फिर अचानक हैरत से वहीं रुक गया, क्योंकि उसके सामने एक बूढ़ी औरत चरखे पर सोने का धागा बुन रही थी। शहजादा हमदान आगे बढ़ा ताकि वो उस बूढ़ी औरत से बात कर सके। आप कौन हैं? और ये सब क्या है? ये वक्त के धागे हैं। मैं वक्त की निगरान हूं और वक्त को बुनती हूं, जो कभी खत्म नहीं होता। मैं शहजादी मेराल को ढूंढ रहा हूं। मेरी शहजादी कहाँ है? वो ना आसमान पर है, ना तुम्हारी जमीन पर। वो किसी और दुनिया में है, जहां वक्त नहीं चलता। ये आप क्या कह रही हैं? मैं 10 दिन से उसे ढूंढ रहा हूं। वो एक ऐसी दुनिया में है जहां वक्त बहुत आहिस्ता चलता है, इसीलिए वहां वक्त रुका हुआ महसूस होता है। शायद वहां उसे गए 100 साल गुजर चुके हों। दूसरी तरफ शहजादी मिराल को उस दुनिया में रहते हुए तकरीबन 100 साल होने वाले थे। वो टारॉन न खाते थे, न पीते थे, न सोते थे। वो बस हमेशा उसी दुनिया में खामोशी से चलते रहते थे। इतना अरसा वहाँ रहते रहते शहजादी मिराल भी उन जैसी हो गई थी, मगर उसके अंदर का दिल अब भी जिंदा था और अब शहजादा हमदान को दोबारा देखना ही उसकी आखिरी ख्वाहिश बन चुकी थी। शहजादी मिराल ने उस टारॉन से बात की जिसने उसे छूकर उसका हाल जान लिया था। मिराल ने बेबसी से उसकी तरफ देखा और फिर धीमी आवाज में पूछा, क्या यहाँ से फरार होने का कोई रास्ता नहीं है? यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है, मगर मरने का है, जो हम करते हैं जब हम थक जाते हैं। आखिरकार शहजादी मिराल उस गार के करीब पहुंच गई, उसी गार के जिसके बारे में उस टारॉन ने उसे बताया था कि जब टारॉन इस गार के अंदर दाखिल होते हैं तो वो दुआ करते हैं हम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं, और फिर वो वाकई ख़त्म हो जाते हैं और उनकी जगह एक नया टारॉन पैदा हो जाता है। क्या आप वक्त को पीछे नहीं कर सकती ताकि सब ठीक हो जाए? हमें इसकी इजाजत नहीं है। मैंने एक सुनहरी चिड़िया देखी थी। मुझे लगता है वो जरूर उस दुनिया का रास्ता जानती थी। बूढ़ी औरत ने शहजादा हमदान की तरफ देखते हुए कहा, वो सिर्फ इतना कर सकती है कि उसे दोबारा उस सुनहरी चिड़िया तक पहुंचा दे, बाकी अब उसकी किस्मत। ये कहकर उसने चरखे का सुनहरी धागा आहिस्ता से पीछे घुमाया और शहजादा हमदान सुनहरी रोशनी में गायब हो गया। शहजादे ने दोबारा खुद को उस चिड़िया के पीछे भागते हुए पाया, मगर चिड़िया फिर गायब हो गई। आखिर ये चिड़िया कहाँ गई? पत्थर मारते ही जंगल में मौजूद नजर न आने वाला शीशा टूट गया और उसी लम्हे वहां एक और दुनिया का रास्ता खुल गया। शहजादा हमदान आगे बढ़ा और उस दुनिया के अंदर दाखिल होकर गायब हो गया, और उसके जाते ही वो रास्ता दोबारा बंद हो गया। बहुत देर हो चुकी थी। शहजादी मिराल उस गार में जाकर दुआ कर चुकी थी कि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, मगर मरने से पहले उसकी सिर्फ एक आखिरी ख्वाहिश थी कि वो एक आखिरी बार शहजादा हमदान को देख सके।
अचानक शहजादा हमदान उसके सामने जाहिर हो गया और वो दोनों हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। मीराल, मैं आ गया हूं। हमदान, मुझे माफ कर देना, मेरा इंतजार बहुत लंबा था। ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश मांग चुकी हूँ, अब मेरे जाने का वक्त है। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारे बगैर ऐसे जी नहीं पाऊंगा। और मैं तुम्हारे बाबा को क्या जवाब दूंगा? 100 साल यहाँ 100 सदियों जैसे थे। पापा को कहना उनकी आखिरी ख्वाहिश अब कभी पूरी नहीं होगी। शहजादी मिराल सुर्ख रोशनी में तब्दील होकर आहिस्ता आहिस्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और शहजादा हमदान ने खुद को दोबारा उस सुनहरी जंगल में पाया, मगर अब तन्हाई और मिराल की यादें ही उसका मुक़द्दर बन चुकी थी। आप सोच रहे होंगे कि वो सपेरा कहाँ गया। उसे दोबारा किसी ने नहीं देखा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि वादा खिलाफी और गलत फैसले कभी कभी पूरी जिंदगी बदल देते हैं।